آخر مارکس اورلس کون ہے اور کیوں اتنے مشہور ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مارکس اورلس کے بچپن نے انہیں ایک عظیم رومی فلسفی اور حکمران بننے میں کیسے مدد دی؟ کیا صرف ہمت کافی ہوتی ہے یا مارکس اورلس جیسا مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے؟ کیا مارکس اورلس واقعی ایک جنگجو شہنشاہ تھے یا ان کی اصل جنگ ذہنی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مارکس اورلس کے فلسفے نے آج تک لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قدیم روم کا دور جس میں مارکس اورلس نے حکمرانی کی ہماری موجودہ تہذیب پر کتنا اثر انداز ہوا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارکس اورلس کا اصل میدان جنگ میدان عمل تھا یا ان کی اپنی اندرونی کشمکش؟ کیا مارکس اورلس نے دولت سے زیادہ اپنی سوچ اور کردار سے دنیا کو متاثر نہیں کیا؟ کیا مارکس اورلس کے مکالمات باطنی میڈیٹیشنز ایک عام انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے میڈیٹیشنز میں ایسے کون سے اقوال ہیں جو آج بھی ذہنی سکون کا راستہ دکھاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ مارکس اورلس کے اسٹوسا نظریات مشکل وقت میں ہماری کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی مارکس اورلس کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں یا یہ صرف کتابی باتیں ہیں؟ کیا ایک شہنشاہ کا فلسفیانہ ہونا غیر معمولی بات نہیں؟ آخر انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ کیا ان کی شہرت صرف ایک عظیم حکمران ہونے کی وجہ سے تھی یا ان کے اندر کوئی انقلابی سوچ بھی تھی؟ کیا رومی سلطنت کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے فلسفے کے میدان میں بھی نئی سرحدیں کھول دیں؟ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ مارکس اورلس کی زندگی کی کہانی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی چھپی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس شاندار سفر کی ابتدا اور مزید تفصیلات پارٹ 1 میں۔ مارکس اورلس کی پیدائش 26 اپریل 121 عیسوی کو روم کے ایک معزز اور بااثر خاندان میں ہوئی۔ کم عمری میں ہی والد کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے ان کی پرورش زیادہ تر ان کی والدہ ڈومیٹیا لوسیلا اور قریبی رشتہ داروں کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ خاندان علمی اور سماجی لحاظ سے نمایاں تھا، جس نے مارکس کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کیے۔ وہ شروع سے ہی مطالعہ اور غور و فکر کا شوق رکھتے تھے۔ ان کے اساتذہ میں جون سراسٹس اور دیگر نامور فلسفی شامل تھے، جنہوں نے اسٹوکا فکر اور اخلاقیات کے بنیادی تصورات سے مارکس کو روشناس کرایا۔ بچپن ہی میں ان کی شخصیت میں سنجیدگی اور سادگی کے اوصاف نمایاں ہونے لگے۔ اشرافیہ خاندان سے تعلق کے باوجود وہ اکثر فطرت اور فلسفے کی کتابوں میں کھوئے رہتے، شاہانہ ماحول کے بجائے سادہ زندگی کو ترجیح دیتے اور اپنی ذہنی نشوونما کے لیے وقت صرف کرتے۔ اس غیر معمولی رجحان نے انہیں ہم عصر بچوں سے مختلف بنا دیا۔ ان کی والدہ بھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور انہوں نے بیٹے کی اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دی، جس سے مارکس کے اندر خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھے۔ جب رومی شہنشاہ ہیڈریان نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا تو شاہی سرپرستی کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ ہیڈریان کے جانشین اینٹونینس پاسا نے مارکس اورلس کو گود لیا، جس سے وہ مستقبل کے حکمرانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ یہ ذمہ داری ان کی زندگی کا رخ متعین کرنے میں اہم ثابت ہوئی۔ اگرچہ انہیں ایک شاہانہ ماحول میسر آیا، لیکن ان کا مزاج بدستور فلسفیانہ اور متجسس رہا۔ اس دور میں انہیں خطابت، قانون، فلسفہ اور جسمانی تربیت کے مراحل سے گزارا گیا، جنہوں نے ان کی شخصیت میں قائدانہ اوصاف اور دانشمندانہ رویے پیدا کیے۔ یوں بچپن کے ابتدائی سالوں نے ان کے مستقبل کی بنیاد رکھ دی۔ فلسفے اور اخلاقیات کا شوق، شاہی سرپرستی اور سادہ طرز زندگی کی خواہش، سب نے مل کر مارکس اورلس کو ایک ایسے فکری سفر پر ڈال دیا جس نے انہیں آگے چل کر تاریخ کا ایک منفرد فلسفی بادشاہ بنا دیا۔ انہی اوائل عمر کی تربیت اور تجسس نے انہیں بعد میں روم کی وسیع سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعے انسانی سوچ کو بدلنے کا حوصلہ دیا۔ مارکس اورلس کی نجی زندگی میں شادی اور خاندان کا باب انتہائی اہم ہے۔ ان کی شادی اوانسگیلیا فاسٹینا سے ہوئی، جو شہنشاہ اینٹونینس پاسا کی بیٹی تھی۔ اس رشتے نے نہ صرف شاہی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا، بلکہ مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں بھی ان کی اہمیت بڑھا دی۔ رومی سلطنت میں شاہی خاندان کی شادیاں اکثر سیاسی اور انتظامی مقاصد کے تحت طے کی جاتی تھیں، تاہم مارکس اور فاسٹینا کا رشتہ بظاہر ایک ہم آہنگ اور دیرپا تعلق کی صورت میں سامنے آیا۔ فاسٹینا کے بارے میں تاریخ میں مختلف آراء ملتی ہے۔ کچھ مورخین انہیں مدبر خاتون قرار دیتے ہیں، جنہوں نے دربار کے معاملات میں معاونت کی، جبکہ کچھ انہیں شاہی سازشوں اور درباری عیاشیوں سے جوڑتے ہیں۔
बहरहाल मार्क्स ओरलस ने अपनी तहरीरों में फास्टेना को ज्यादा मनफी अंदाज में पेश नहीं किया, जिससे अंदाजा होता है कि उनके बाहमी ताल्लुकात निस्बतन खुशगवार थे। दोनों के यहाँ मुताद्दिद औलादें हुई, जिनमें से कुछ कम उम्री में इंतकाल कर गईं, जबकि कुछ जवान रहकर अहम जिम्मेदारियां संभालें। उनकी औलाद में सबसे ज्यादा मशहूर कोमीडस हुआ, जो बाद में रूमी सल्तनत का शहंशाह बना। शादी और खानदानी जिम्मेदारियों ने मार्क्स ओरलस को इक्तिदार की अमली तरबियत भी फराहम की। रूमी दरबार में साजिशें, सियासी जोड़ तोड़ और ताकत की कशमकश आम थी। शाही खानदान से जुड़े रहने की वजह से वो बराह रास्त उन मामलात का हिस्सा बन गए। ताहम उनकी फलसफियाना तरबियत और इखलाकी मिजाज ने उन्हें हद से तजावुज करने से रोके रखा। वो खानदानी जिंदगी को एक इखलाकी और समाजी फरीजा समझते थे और कोशिश करते थे कि शाही शान और शौकत के बावजूद सादगी और अखलाकियात का दामन न छोड़ें। उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी के असरात उनकी तहरीरों में भी मिलते हैं, जहां वो खानदान की अहमियत, औलाद की तरबियत और घरेलू जिम्मेदारियों पर रोशनी डालते हैं। वो समझते थे कि अगर हुक्मरान घर में इंसाफ और मोहब्बत का रवैया अपनाए तो रियासत के इंतजाम में भी अदल और हम आहंगी पैदा हो सकती है। इसी सोच के तहत उन्होंने खानदान और इक्तिदार के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश की, जिससे उनकी जिंदगी का ये पहलू महज जाती खुशी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि रोम की सियासत और मुस्तकबिल की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करता रहा। मार्क्स ओरलस के दूर हुकूमत में रूमी सल्तनत को कई जंगों का सामना रहा, जिनमें अहम तरीन शुमाली सरहदों पर जर्मन कबाइल के साथ होने वाली झड़पें थीं। ये जंगें तारीख में मार्को मीनट वॉर्स के नाम से जानी जाती है। इन कबाइल ने रूमी सरहदों पर मुसलसल दबाव बढ़ाया हुआ था और डीनोब के इर्द गिर्द लूटमार का सिलसिला जारी रखा। इब्तिदाई तौर पर मार्क्स ओरलस ने सिफारतकारी और मुआहदों के जरिए अमन कायम रखने की कोशिश की, लेकिन जब ये इक़दामात नाकाम हुए तो उन्होंने तलवार उठाने से भी दरेर न किया। इन जंगों ने न सिर्फ रूमी सल्तनत की सरहदों को गैर मुस्तहकम किया, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी बगावतों और सियासी साजिशों को हुआ दी। मार्क्स ओरलस को एक ही वक्त में फौजी महाजों और दरबारी मामलात दोनों को संभालना पड़ा। उनके लिए ये सूरत हाल एक बड़ा इम्तिहान थी, क्योंकि वो एक फलसफियाना मिजाज रखने वाले हुक्मरान थे जो जंग को आखिरी चारकार समझते थे। ताहम सल्तनत की बका और अवाम की हिफाजत के लिए उन्हें अमली तौर पर मैदान जंग में उतरना पड़ा। इन जंगी वाकयात के दौरान उनकी हिकमत अमली का अहम पहलू फौज के साथ करीबी राब्ता था। वो महाजन जंग पर जाकर सिपाहियों की हौसला अफजाई करते, उनके मसाइल सुनते और अपने फैसलों में उनकी राय का भी एहतराम करते। इस तर्ज़ अमल ने फौज का मोराल बुलंद रखा। बाज़ मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि जंगी खैमों में वो रात को तन्हाई में मेडिटेशंस लिखा करते थे, जिसमें उनका फलसफियाना ज़हन और अमली हिकमत अमली एक साथ नजर आती है। जर्मन कबाइल के साथ ये झड़पें किसी हतमी नतीजे पर न पहुंच सकें, क्योंकि कबाइल की मुसलसल नकल व हरकत और वसी सरहदी इलाके पर रूमी तसल्लुत को बरकरार रखना मुश्किल साबित हो रहा था। इसके बावजूद मार्क्स ओरलस ने वक्ती तौर पर कई फतूहात हासिल की और शुमाली सरहदों को मजबूत करने के लिए अमली इक़दामात किए। इन जंगों के दौरान फैलने वाली वबा एंटोनाइन प्लेग ने भी फौजी कुव्वत और माशी वसाइल को कमजोर किया। यूं मार्क्स ओरलस को एक ही वक्त में जंग, वबा और अंदरूनी खलफिशार का मुकाबला करना पड़ा। ये तमाम तर मुश्किलात उनकी क़ियादत के लिए एक कड़ा इम्तिहान थी, लेकिन वो फलसफा और अखलाकियात की रोशनी में साबित कदम रहे। मार्क्स ओरलस की असल शोहरत एक रूमी शहंशाह से बढ़कर एक फलसफी हुक्मरान की है। उनके दौर में फलसफा मुआशरे के इल्मी और फिक्री मुबाहिस का मरकजी सुतून था। अगरचे यूनानी फलसफी अफलातून और अरस्तु पहले ही अपने असरात छोड़ चुके थे, ताहम रोम में बिलखुसूस स्टोइक और एपिक्यूरियन मुक्कातन फिक्र का चर्चा था। मार्क्स ओरलस ने जवानी में ही स्टूसा फलसफे की तरफ रुजू किया और जिंदगी भर इससे जुड़े रहे। स्टूका फलसफा इंसान को अंदरूनी सुकून और ज़ब्त नफस सिखाता है। मार्क्स ओरलस ने यही उसूल अमली जिंदगी में अपनाया। उनके नजदीक हुक्मरान को सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि बैरूनी हालात को हमेशा तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी तहरीरों में बारहा जिक्र किया कि हालात चाहे कैसे भी हों, इंसान अपने रद्दे अमल को संभाल सकता है। ये नजरिया रूमी दरबार के इस माहौल से मुख्तलिफ था, जहां ताकत और शान और शौकत की नुमाइश आम थी। मार्क्स ओरलस के फलसफे में अखलाकियात को खास अहमियत हासिल थी। वो समझते थे कि इक़्तिदार इंसान के लिए आजमाइश है, और अगर वो फलसफियाना उसूलों पर कायम न रहे तो तकब्बुर और जुल्म का शिकार हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी हुक्मरानी को एक खिदमत समझा, न कि ज़ाती नमूद व नुमाइश का जरिया।
उनका कहना था कि अदल व इंसाफ सिर्फ कवानीन के जरिए नहीं बल्कि हुक्मरान के अपने इखलाकी रवैये से नाफिज होता है। उन्होंने गुलामों और निचले तबकों के लिए कुछ इस्लाहात भी की, अगरचे वसी पैमाने पर तब्दीलियां लाने में वक्त और हालात ने उनका साथ न दिया। उनकी फलसफियाना सोच सिर्फ इक़्तिदार तक महदूद न रही, वो इंसान और कायनात के बाहमी ताल्लुक पर भी गहरी नजर रखते थे। उनके नजदीक इंसान को अपनी कम मायगी और आर्जी हैसियत का इदराक होना चाहिए ताकि वो आजिजी और इंकिसारी से काम ले। यही वो रवैया था जिसने मार्क्स ओरलस को एक अजीम हुक्मरान होने के बावजूद सादा तर्ज जिंदगी की तरफ माइल रखा। वो जंगों, वबाओं और सियासी बहरानों के बावजूद अपने अंदरूनी सुकून को बरकरार रखने की कोशिश करते रहे और अपनी तहरीरों में भी दूसरों को यही पैगाम दिया। मार्क्स ओरलस का जमाना रूमी सल्तनत के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस वक्त सल्तनत अपनी जोग्राफियाई वसत की आखिरी हुदूद को छू रही थी, जिसमें बरतानिया से लेकर दरियाए फरात और शुमाल में जर्मन सरहदों से लेकर अफ्रीका के सहराओं तक रूमी अमलदारी फैली हुई थी। साबिका शहंशाहों, खास तौर पर हेड्रियान और एंटोनेस पासर ने निस्बतन अमन और खुशहाली को बरकरार रखने की कोशिश की थी। ताहम मार्क्स ओरलस के इक़्तिदार में आने के साथ ही जर्मन कबाइल के हमलों और मशरिक में पारत्ती सल्तनत की कशमकश ने सियासी और अस्करी मसाइल को बढ़ा दिया। रूमी मुआशरे में इस दौर में तबकाती फर्क वाज़े था। अशराफिया को बड़ी मुराद हासिल थी, जबकि गुलाम और निचले तबके अक्सर बुनियादी सहूलियात से महरूम रहते। मार्क्स ओरलस ने गुलामों के लिए चंद इस्लाहात मुतारफ कराईं और टैक्स के निज़ाम में नरमी की कोशिश की, लेकिन सल्तनत के वसी मसाइल के बाइस उन इस्लाहात का असर महदूद रहा। दाखिली तौर पर सियासी साजिशें और ताकत के हुसूल की जिदोजहद जारी रही, जिसे वो अपनी हिकमत और फलसफियाना रवैये से कम करने की कोशिश करते रहे। रोम का ये दौर सकाफती और मजहबी तनव्वो का जमाना भी था। सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों से लोग दारुल हुकूमत में आते थे, जिससे मुख्तलिफ जुबानें, मज़ाहिब और रस्म व रिवाज बाहम मिलते। ये तनव्वो एक तरफ फ़नून और तमीरात में तरक्की का बाइस बना तो दूसरी तरफ दाखिली तनाज़ात और कशीदगी का सबब भी बना। मार्क्स ओरलस के लिए इस तनव्वो को एक वहदत में ढालना एक मुसलसल चैलेंज था। उन्होंने रवादारी और फलसफियाना नुक्ता नजर से मामलात को सुलझाने की कोशिश की, मगर बाज मामलात जैसे मसीहियत के फैलाव पर रियासती पॉलिसी सख्त भी रही। माशी लिहाज से रूमी सल्तनत इस वक्त बैरूनी जंगों और अंदरूनी खलफिशार के बाइस दबाव में थी। फौजी अखराजात बढ़ गए और शाही खजाने को जंगी मुहिम्मात पर खर्च करना पड़ा। मार्क्स ओरलस ने यहाँ तक के शाही अमलाक भी बेची ताकि फौज और अवामी बहबूद के मंसूबों के लिए वसाइल मुहैया हो सके। मजमूई तौर पर यह दौर एक अबूरी मरहला था, जिसमें रोम अपनी अजमत की इंतहा के बाद बतदरीज मसाइल की तरफ बढ़ रहा था। मार्क्स ओरलस ने अपने फलसफे और क़ियादत के जरिए सल्तनत को एक हद तक संभाला दिया, लेकिन वक्त और वसाइल की कमी ने उन्हें मुकम्मल कामयाबी से रोके रखा। यही दूर बाद के रूमी ज़वाल की इब्तिदाई झलक भी पेश करता है। अगरचे मार्क्स ओरलस एक फलसफी मिजाज के हामिल हुक्मरान थे, ताहम वो जंग के मैदान में भी अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाने पर मजबूर हुए। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो रूमी सल्तनत को शुमाल में जर्मन कबाइल और मशरिक में पारत्ती सल्तनत जैसी ताकतों का सामना था। इस वसी सल्तनत की हिफाजत के लिए उन्हें बारहा फौजी मुहिम्मात में शिरकत करना पड़ी। जर्मन कबाइल के हमलों के दौरान वो अक्सर महाज पर खुद मौजूद रहते और सिपाहियों का हौसला बढ़ाते थे। इससे उन्हें अपनी फौज में बेपनाह मकबूलियत मिली। मार्क्स ओरलस जंग को आखिरी चारकार समझते थे और सिफारतकारी को तरजीह देते थे, लेकिन जब मुआहदे टूटते आ दुश्मन हमले जारी रखता तो वो तलवार उठाने से ग्रेज न करते। उनके लिए जंग सिर्फ एक बैरूनी तसादुम नहीं थी, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी एक आजमाइश थी। वो फलसफा और अखलाकियात का दर्स देते थे, लेकिन इक़्तिदार की बका के लिए उन्हें सख्त फैसले भी लेने पड़े। इस दौर में सल्तनत का दिफा हर हुक्मरान की पहली तरजीह हुआ करता था और मार्क्स ओरलस भी इसी रवायत की पासदारी करते रहे। इन मुहिम्मात के दौरान रूमी फौज को एक और आफत का सामना भी रहा, एंटोनाइन प्लेग नामी वबा, जिसने फौजियों और अवाम में हजारों जानें ले ली। वबा के बाइस जंगी सलाहियत मुतासिर हुई और मईशत को धचका लगा। ताहम मार्क्स ओरलस ने फौज की बहाली के लिए शाही खजाने को इस्तेमाल किया, अपने जाती असासे तक फरोख्त किए और अवामी बहबूद के मंसूबों को भी जारी रखा। वो मैदान जंग में भी अपनी डायरी लिखते, जिसे बाद में वो मेडिटेशंस की सूरत में मुरतब किया गया। इन तहरीरों में जंग और मौत के मनाजिर भी झलकते हैं और स्टूका फलसफे की पुरसुकून रहने की तलकीन भी।
जंग के मैदान में मार्कस ओरलस का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि वो महज हुक्म देने वाला जर्नैल नहीं था बल्कि सिपाहियों का साथी भी था। इसका नतीजा ये निकला कि सिपाहियों ने मुश्किल तरीन हालात में भी हिम्मत न हारी। अगरचे जर्मन कबाइल के खिलाफ कोई मुस्तकिल और फैसला कुन फतह मुमकिन न हुई, लेकिन रूमी सल्तनत की सरहदें बड़ी हद तक महफूज रही। इस दोहरी जिदोजहद, फलसफे और तलवार के मिलाप ने उन्हें तारीख में एक मुनफरिद हैसियत अता की, जिसमें हुक्मरान को सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इखलाकी जिम्मेदारी का भी पास रखना पड़ा। मार्कस ओरलस की शख्सियत का एक अहम पहलू उनका मकालमाती अंदाज था, जो सबसे ज्यादा उनकी तसनीफ और मेडिटेशंस में झलकता है। अगरचे ये तहरीरें जाती नोटिस की सूरत में लिखी गईं, ताहम उनमें एक मकालमाती कैफियत मौजूद है। वो कभी अपने आप को तंबी करते हैं, कभी सवाल उठाते हैं, कभी अपने अंदरूनी जज्बात से बात करते हैं। इस तर्ज़ तहरीर से पता चलता है कि वो फलसफे को महज नजरियाती बहस तक महदूद नहीं रखना चाहते थे, बल्कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे। इन मुकालमात की जुड़ें कदीम यूनानी रवायत से मिलती हैं, जहां सुकरात और अफलातून ने सवाल और जवाब के जरिए फलसफियाना ख्यालात को बयान किया। रोम में इसका तसलसल स्टूका और दीगर मुक्कातुन फिक्र में भी पाया जाता था। मार्कस ओरलस ने इस रवायत को अपनी ज़ात में समोने की कोशिश की। वो रोजमर्रा मामलात, जंगी मुहिम्मात और दरबारी साजिशों के बावजूद अपने अंदरूनी मुकालमे को जारी रखते। यही वजह है कि जब उनके इर्द गिर्द हंगामे बरपा थे, तब भी वो रात की तन्हाई में अपने ख्यालात को अल्फाज का जामा पहनाने में मसरूफ रहते। यही मकालमाती मिजाज उनकी हुक्मरानी के अंदाज में भी नजर आता था। वो दरबार में मुख्तलिफ शुबों के लोगों से गुफ्तगू करते, उनकी राय जानते और इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करते। इस तर्ज़ अमल ने दरबार में इल्मी मुबाहिस और फलसफियाना गुफ्तगू को फरोग दिया। जहां रूमी दरबार अमूमी तौर पर ताकत के खेल का मरकज समझा जाता था, वहां मार्कस ओरलस ने मुकालमे और मुबाहिसे के जरिए कई तनाज़ात को सुलझाने की कोशिश की। अगरचे वो तमाम साजिशों का खात्मा न कर सके, लेकिन उनके दौर में इल्मी फजीलत की कदर जरूर बढ़ गई। मुकालमात का एक और पहलू उनकी अवामी जिंदगी में भी दिखाई देता है। वो कभी कभार अवाम से भी बराह रास्त गुफ्तगू करते और उनके मसाइल सुनते। अगरचे एक वसी सल्तनत में हर जगह जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन जहां तक रसाई मुमकिन होती, वहां वो बातचीत के जरिए लोगों के हालात जानने की कोशिश करते। ये सब कुछ उनके स्टूका फलसफे की अमली ताबीर था, जिसमें इंसान को अपने अंदरूनी और बैरूनी दुनिया दोनों से राब्ता रखना सिखाया जाता है। यूं मार्कस ओरलस की शख्सियत का मकालमाती पहलू हमें एक ऐसा हुक्मरान दिखाता है जो हुक्म चलाने के बजाय बातचीत को तरजीह देता था। मार्कस ओरलस की तसनीफ मेडिटेशंस को दुनिया भर में एक ग्रां कदर फलसफियाना दस्तावेज का दर्जा हासिल है। अगरचे ये तहरीरें उनकी जाती डायरी की शक्ल में लिखी गईं और शायद उनकी इशात का इरादा नहीं था, लेकिन उनमें मिलने वाले अक़वाल ने सदियों से क़ारीन को मुतासिर किया है। इन अक़वाल का बुनियादी महवर स्टूका फलसफा है, जिसमें ज़ब्त नफस बैरूनी हालात से लाताल्लुक़ी और इखलाकी उसूलों की पासदारी पर जोर दिया जाता है। एक मशहूर कौल यह है कि इंसान बैरूनी दुनिया को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच और रद्द अमल को जरूर कंट्रोल कर सकता है। ये तसव्वुर आज की मसरूफ और दबाव वाली जिंदगी में भी इंतहाई कारआमद है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग हालात के बजाय अपने रद्द अमल की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। मार्कस ओरलस सिखाते हैं कि हमें उन चीजों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो हमारे इख्तियार में है, जैसे हमारी नीयत, हमारे अमाल और हमारा रवैया। मेडिटेशंस में वो बारहा वक्त की नापायदारी और जिंदगी की मुख्तसर मुद्दत का तज़किरा करते हैं। एक और कौल में वो कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो। इस सोच से इंसान गैर जरूरी फिक्र और मुस्तकबिल के अंदेशों से कदरे आजाद हो जाता है और हाल में जीने की कोशिश करता है। ये उसूल जदीद नफ्सियात में भी बहुत सराहा जाता है, जिसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। अखलाकियात और इंसाफ के हवाले से भी उनके कई अक़वाल हैं, जिनमें वो हुक्मरानों और बाइख्तियार लोगों को याद दिलाते हैं कि ताकत एक आजमाइश है। अगर कोई साहिब इख्तियार इंसान अपनी अना और ख्वाहिशात को काबू में ना रख सके, तो वो न सिर्फ खुद तबाह होता है बल्कि मुआशरे को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए वो तक़ूदियानत और एतदाल का दामन थामने पर जोर देते हैं। ये पैगाम आज के रहनुमाओं और आम इंसानों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। मेडिटेशंस का सबसे मुनफरिद पहलू उसकी सादगी और बराह रास्त अंदाज है। यहाँ कोई गुंजलक फलसफियाना उसलूब अदबी तकल्लुफ नजर नहीं आता। ये सीधी और दिल से निकली हुई बातें हैं जो एक हुक्मरान की जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ पेश करती है।
यही वजह है कि ये अक़वाल आज भी इतने ही बामानी हैं जितने मार्क्स ओरलस के ज़माने में थे, और शायद इसीलिए उन्हें इंसानियत का मुश्तरका विरसा समझा जाता है। मार्क्स ओरलस का जिक्र स्टोइसिज्म के बगैर मुकम्मल नहीं होता। स्टोइसिज्म कदीम यूनान में ज़ीनो ऑफ सिक्योम ने शुरू किया था, मगर रोम में आकर ये एक मजबूत फलसफियाना मकतब बन गया। इसके बुनियादी उसूलों में एक ये है कि इंसान को अपनी अंदरूनी कैफियत और रद्द अमल पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बैरूनी वाक़यात पर उसका इख्तियार महदूद है। दूसरे लफ्ज़ों में, दुनिया में क्या हो रहा है इसे हम हमेशा नहीं बदल सकते, लेकिन अपने जज्बात, ख्यालात और अमाल को जरूर बदल सकते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जिंदगी में मसाइब और मुश्किलात से घबराने के बजाय उन्हें एक कुदरती अमल समझना चाहिए। ये फलसफा कुदरती कवानीन के साथ हम आहंगी पर जोर देता है, जहां हर चीज एक बड़े निजाम का हिस्सा है। इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखे और उन कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इसका मकसद ये नहीं कि इंसान जज्बात से बिल्कुल खाली हो जाए, बल्कि ये कि वो इन जज्बात को अक्ल की रहनुमाई में लाए, ताकि वो नुकसान अब-ए-एतदाली का बाइस न बने। मार्क्स ओरलस के नजदीक स्टोइसिज्म की इफादियत सिर्फ नजरियाती नहीं थी, वो इसे अमली तौर पर अपनी जिंदगी और हुक्मरानी में नाफिज करते थे। मसलन वो बैरूनी जंगों, दरबारी साजिशों और जाती रंजिशों के बावजूद अपने रवैये में तहम्मुल और बुर्दबारी को बरकरार रखते। स्टू के उसूलों के मुताबिक वो अपनी तवज्जो उन मामलात पर मरकूज रखते जिन्हें वो तब्दील कर सकते थे, जबकि इन मामलात पर गैर जरूरी फिक्र नहीं करते थे जो उनके काबू से बाहर थे। यही वजह है कि ओ मेडिटेशंस में भी वो बारहा इस फलसफे का हवाला देते हैं। स्टोइसिज्म में अखलाकियात को खास अहमियत हासिल है। इस फलसफे के मुताबिक नेक और आदिल होना इंसान की अपनी शख्सियत की तकमील के लिए जरूरी है, चाहे बैरूनी दुनिया इसकी कद्दानी करे या नहीं। मार्क्स ओरलस ने इक्तिदार को भी इसी इखलाकी मेयार पर परखा। उनका मानना था कि हुक्मरान का असल इम्तिहान यह है कि वो कितना आदिल, मुंसिफ और अपनी अना से बालातर है। यूं स्टोइसिज्म ने उनके अंदर एक ऐसा इखलाकी ढांचा तश्कील दिया जिसने उन्हें तारीख में फलसफी बादशाह का मुनफरिद लक़ब दिलाया। आज भी अगर कोई शख्स मुश्किलात में ज़हनी सुकून और इखलाकी मजबूती चाहता है तो स्टोइसिज्म के उसूल, बिलखुसूस मार्क्स ओरलस की तहरीरें, एक बेहतरीन रहनुमा साबित हो सकती है। मार्क्स ओरलस के फलसफे और स्टोइसिज्म की हकीकी खूबी यह है कि इसे महज इल्मी बहस, दरबारी नोटिस समझकर पुष्ट नहीं डाला गया, बल्कि इसे अमली जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम रोजमर्रा के मामूलात को देखें तो हमें मालूम होता है कि अक्सर औकात हम उन चीजों के बारे में फिक्रमंद रहते हैं जिन पर हमारा इख्तियार ही नहीं होता। मार्क्स ओरलस हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी तवानाई और तवज्जो उन पहलुओं पर मरकूज रखनी चाहिए जो हमारे काबू में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारा रद्द अमल और हमारा इखलाकी रवैया। ज़ब्त नफस सेल्फ कंट्रोल एक ऐसा सुतून है जो हमारे ताल्लुकात, काम की कारकर्दगी और ज़हनी सुकून को बेहतर बना सकता है। मार्क्स ओरलस के मुताबिक अगर हम अपने जज्बात को अक्ल के ताबे रखें तो हम बहुत से गैर जरूरी तनाज़ात और ज़हनी दबाव से बच सकते हैं। जदीद दुनिया में जहां सोशल मीडिया, खबरों और माशी मुश्किलात ने हमें हर वक्त तनाव में रखा हुआ है, स्टू का फलसफा एक अमली हल पेश करता है। अपनी अंदरूनी कुव्वत पर भरोसा करें और बैरूनी हालात को हमेशा बदलने की कोशिश न करें। एक और अहम सबक वक्त की कदर है। मार्क्स ओरलस मौत और जिंदगी की नापायदारी पर गौर करते हुए हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मोहलत महदूद है, लिहाजा हमें इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज के मसरूफ मुआशरे में जहां वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, ये सबक हमें सिखाता है कि तरजीहात का तयन करें और उन पर साबित कदम रहें। गैर जरूरी मसरूफियात को कम करें और अपनी तवानाई उन कामों में लगाएं जो वाकई मानी रखते हैं। उनकी तालीमात में आजिज़ी और शुक्रगुजारी का पहलू भी नुमाया है। वो इक़्तिदार की बुलंदियों पर होने के बावजूद अपनी कम मायगी और फानी हैसियत को नहीं भूले। ये रवैया हमें सिखाता है कि हम जितनी भी कामयाबी हासिल कर लें, हमें अपनी असल और दूसरों के हुकूक का एहतराम याद रखना चाहिए। शुक्रगुजारी के जरिए हम अपने अंदरूनी सुकून को बढ़ा सकते हैं और मनफी जज्बात से दूर रह सकते हैं। अलगर्स मार्क्स ओरलस के अफकार और स्टू का उसूल सिर्फ कदीम रोम तक महदूद नहीं, बल्कि आज की जिंदगी में भी उनका इतलाक मुमकिन है। खुद एहतिसाबी, ज़ब्त नफस, वक्त की कदर और आजिज़ी जैसे औसाफ हमें एक बेहतर इंसान और एक मुतवाज़िन शख्सियत बना सकते हैं। यही वजह है कि उनकी तहरीरें आज भी लोगों को मुतासिर करती हैं। ये था मार्क्स ओरलस की जिंदगी और फिक्र का मुख्तसर जायजा।
उनके बचपन से लेकर शादी और खानदान, जंगी वाकयात से फलसफा और मेडिटेशंस के अकवाल तक, हर पहलू में हमें एक ऐसे हुक्मरान की झलक मिलती है जो न सिर्फ अपनी सल्तनत की हिफाजत कर रहा था बल्कि एक गहरे फिक्री सफर पर भी गामजन था। स्टोइसिज्म ने उन्हें वो इखलाकी और रूहानी बुनियाद फराहम की जिस पर खड़े होकर वो रोम की ताकतवर सल्तनत के चैलेंजेस का सामना कर सके। पार्ट 2 जल्द आ रहा है। अगले हिस्से में हम मार्कस ओरलस की जिंदगी के मजीद दिलचस्प पहलुओं का जायजा लेंगे, उनके फलसफे की गहराई को समझेंगे और देखेंगे कि एक फलसफी हुक्मरान की सोच आज भी हमारी जिंदगी में कैसे रहनुमाई फराहम कर सकती है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। पार्ट 2 जल्द आप तक पहुंचेगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।